Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and the predictions for the month of April 2023 for Leo Ascendant people. Now, the principle of better to reign in hell than to serve in heaven applies firmly to Leo Ascendant people because they are natural leaders. The amount of work that the Leo Ascendant people can delegate to others, no other sign can. They can get work done from others at an exceptionally fast speed, and you will find a lot of people with excellent leadership and time management skills belonging to the Leo ascendant. Now coming to the predictions for the month of April, time frame till 13th of April will be stressful because sun will be passing through the 8th house and the ascendant lord in the 8th house is not considered a good position. So you will feel some kind of a mental stress during the time frame of 1st to 13th of April. But after this, the moment sun enters into the ninth house in its exalted position from 14th April to 14th of May, you will see a 180-degree turnaround in your fortunes. This ascendant lord will start to favor you as far as the luck is concerned, and you will also undertake a long journey or a religious journey, especially in the time frame of 14th to 17th of April. The time frame from 14th of April to 14th of May will be excellent for you as far as luck is concerned. Venus is the lord of third house and 10th house for you and is an extremely important planet because it rules over your actions. Now, in this case, Venus is going to be in its own sign from 6th of April to 1st of May. This Venus is going to give you a significant level of respect and popularity at your workplace in the month of April. A lot of Leo ascendant people are in the businesses that are indicated by Venus. These businesses include high-end apparels, vehicles, perfumes, fashion designing, music and luxury products. Venus here would mean that you will also get support of the higher management during the month of April. Another interesting thing that is happening is that Mercury and Mars are exchanging signs in the month of April. So ninth house lord is going into 11th and 11th house lord is going to come into the ninth house, which means that you are going to gain with your sheer luck in this month. Your friends and social circle will also play a role in attaining the desired level of prestige at the workplace. This position also brings in great gains with less effort and is a very desirable position to have in any chart. Saturn is the lord of service, which is the sixth house as well as business for you, and it is currently passing through the seventh house, which is the house of business partnership. So people of Leo ascendant will have a very good time in their profession between 18th to 20th of April. Jupiter will continue to pass through the 8th house. Jupiter is the lord of knowledge and education. The good part that is going to happen for your ascendant is that Jupiter is also going to move into the ninth house of fortune on 22nd of April. Jupiter is also the lord of 5th house, which indicates education and speculation. So its lord transitioning in the ninth house would mean that your luck will start to favor you very strongly from 14th of April. Students and speculators will also have a very good time, but in the later half of April, especially between 22nd to 24th of April, will turn out to be a very good time frame for both of them. This Jupiter is going to combine with Rahu in the month of May and June, and they will constitute a negative combination called as Guru Chandal Yog, but that is something we will discuss in the predictions for the next month. Now, there are also certain days where you need to be careful, and these dates in the month of April are 4th, 5th, and 6th of April, and 11th, 12th, and 13th of April. Avoid taking any key decisions during these 6 days. If you look overall in the month of April, the first half will not be good as far as the mental peace is concerned, but from the second half of April till the end of May, the whole time frame of 1.5 months is going to be extremely good for you. April, most of the planets are in an exceptionally good position. Saturn is in its own sign, Venus is also in its own sign, Jupiter will remain in its own sign for 20-22 days, and then it is going to move in its friend sign in the very good house of ninth. And there is also an exchange of the ninth and 11th house lord, and sun is going to
be in an exalted position again in the ninth house. So planetary support is very strong for you from 14th of April till the end of May, and that is why overall you are going to have a very good time in these 1.5 months. So that's the summary for you for the month of April. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सिंह लग्न के लोग एक नेचुरल लीडर्स होते हैं। ये जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पे अगर ये लीड नहीं कर सकते हैं तो फिर ये उस जगह पे काम नहीं करते हैं। इन लोगों को सम्मान ज़्यादा प्यारा होता है बजाय पैसों के। और आप सिंह लग्न के लोगों के पास बहुत से लोगों का जमावड़ा हमेशा देखेंगे। आपको बहुत से पॉलिटिशियंस भी सिंह लग्न के लोग दिखाई देंगे, क्योंकि ये नेचुरल लीडर्स होते हैं। ये जितना काम दूसरे लोगों से करवा सकते हैं डेलीगेशन करके, उतना और कोई लग्न के लोग नहीं करा सकते हैं। और आप बहुत से ऐसे लोगों को सिंह लग्न के ऊपर टॉप पे देखेंगे कंपनीज में भी। और इनके जो अपना टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल होती है वो इनकी बहुत ही शानदार होती है। ये अपने समय का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करके लेते हैं। अगर अप्रैल के महीने की आप बात करेंगे तो लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में 13 अप्रैल तक भ्रमण करेगा। तो लग्नेश का अष्टम स्थान से जाना, जैसा हमने पिछले महीने भी डिस्कस किया था, ये अच्छी पोजीशन नहीं होती है। लेकिन 13 अप्रैल तक सूर्य यहाँ पर बैठेगा। तो 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए मानसिक तनाव वाला होगा। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य नवे भाव में जाएगा, ये अपनी उच्च राशि में चला जाएगा, मेष राशि में। और 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लग्नेश का नवे भाव में उच्च स्थान से गुजरना यानी कि आपके लिए 180 डिग्री टर्न हो जाएगा आपका भाग्य। और आपको काफी इस समय में अपने भाग्य स्थान से ही मदद मिलेगी अपने कार्यस्थल पर भी। क्योंकि नवे भाव से आप लंबी दूरी की यात्राएं भी देखते हैं, तो आपकी या तो कोई रिलीजियस जर्नी होगी या फिर आप अपने किसी पर्सनल जर्नी पर भी जा सकते हैं। और इसके लिए 14 से 17 अप्रैल तक का समय सबसे बेहतरीन रहेगा। शुक्र आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे। और शुक्र दशम भाव का ही मालिक है आपकी कुंडली के लिए, तृतीय भाव के अलावा। तो दशम भाव में दशमेश का बैठना 6 अप्रैल से 1 मई तक ये दिखाता है कि आपको अपने कार्यस्थल पे बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी। सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप शुक्र से ही जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, यानी कि आप हाई एंड फैशन में हैं, व्हीकल्स के बिजनेस में हैं, परफ्यूम्स, फैशन डिजाइनिंग, संगीत, नृत्य, लग्जरी प्रोडक्ट, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, इन सब से अगर आप जुड़े हुए हैं, तब ये महीना आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ही शानदार निकलेगा। और शुक्र का यहाँ पर बैठे रहना मतलब जितने भी हायर मैनेजमेंट के लोग होंगे उनका हाथ आपके सर के ऊपर होगा, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यहाँ पे अगर आपका शुक्र लग्न कुंडली में भी यही बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को जीवन भर अपने से ऊपर वाले लोगों का साथ कंपनीज में मिलता रहता है। और ये भले ही हायर मैनेजमेंट में या टॉप मैनेजमेंट में नहीं भी पहुंचे तो भी इनके पास हमेशा उन्हीं हायर मैनेजमेंट के लोगों की तरह की सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। तो शुक्र का दशम भाव में होना बहुत ही शानदार पोजीशन है कार्यस्थल पे। अच्छे दिन अगर की हम बात करें तो उसके लिहाज से एक जो अच्छी बात हो रही है वो ये है कि बुध और मंगल का भी आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है। बुध मंगल की राशि में बैठे, मंगल बुध की राशि में बैठे, और दोनों ही भाव, नवा और 11वां भाव, बहुत ही शानदार हैं। इस तरह की जब स्थिति होती है तो व्यक्ति को अपने मित्रों और सोशल नेटवर्क से बहुत फायदा मिलता है। अपने कार्यस्थल पर भी ऐसे लोग आपकी मदद करते हैं जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पे भी ऊंचा उठने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये ऐसी पोजीशन है कि इसमें व्यक्ति को मेहनत कम करनी पड़ती है और लाभ बहुत होता है। तो दोनों ही भाव भाग्य का और लाभ का आपको आपके कार्य में मदद देते हैं, क्योंकि दोनों ही भाव कार्यस्थल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए। 13 अप्रैल के बाद शनि पर दृष्टि डालें तो शनि छठवें और सातवें भाव के मालिक हैं और सातवें भाव से ही भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको अपने कार्यस्थल पे जो सबसे अच्छे दिन हैं वो 18 से 20 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेंगे। गुरु अष्टम भाव से भ्रमण करते रहेंगे और 22 अप्रैल को ही अपना स्थान बदल के नवे भाव में आ जाएंगे। ये आपको भाग्य परिवर्तन में मदद करना शुरू कर देंगे। गुरु आपके लिए पंचमेश भी बनते हैं, तो पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना यही एक चीज दिखाता है कि आपका भाग्य आपका साथ देना अब शुरू कर देगा 22 अप्रैल के बाद से। अगर आप पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों का ही व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, या फिर आप छात्र हैं, तो भी ये महीना 22 से 24 अप्रैल का 3 दिन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। गुरु की युति होगी राहु के साथ मई और जून के महीने में, तो
उससे आपको क्या परिणाम मिलेंगे ये हम अगले महीने का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी का महीना अप्रैल तक का तो बहुत ही शानदार है। अब आपको हर महीने में कुछ दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से निकलता है। तो यहाँ पे जो दिन में आपको सावधान रहना है वो है 4, 5 और 6 अप्रैल और 11, 12 और 13 अप्रैल। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। देखिए, अगर आप कुल मिला के इस महीने को देखेंगे तो आप जब तक लग्नीय षष्ठम भाव में बैठा हुआ है तब तक तो थोड़ी आपको मानसिक पीड़ा होगी। लेकिन जैसे ही वो नवे भाव में आता है 14 अप्रैल से, तो आप देखिए सूर्य उच्च का हो जाएगा, बुध और मंगल का स्थान परिवर्तन है तो वो भी बहुत शानदार स्थिति है। शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु भी 20 दिन तक अपनी राशि में बैठे रहेंगे और उसके बाद अपनी मित्र राशि में आएंगे। तो सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही जोरदार स्थिति में हैं अप्रैल में। और इसीलिए आपके लिए महीना बहुत ही शानदार निकलेगा। खास करके कार्यस्थल पे आप बहुत टाइम से जो प्रशंसा ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगी और सीनियर मैनेजमेंट भी आपका साथ देगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।